everyone, I am Priyanshi and today we will cover class 12 psychology 6th chapter which is attitude and social cognition. So we will study a little about attitudes and attitude formation and why are they important, how can we change attitudes once they are formed, and social cognition may we will study about prejudice and discrimination. So comparatively, it's a very small chapter. However, we cannot skip it or like हल्के में नहीं ले सकते because it will have questions, one marker also, three marker also. बहुत बड़ा question इसमें से possibly नहीं आएगा, but yet it is an important chapter from psychology point of view, of course, and obviously from an exam point of view. So in this chapter, we will cover introduction, then attitude key features, attitude formation, process, factors and influence attitude change, attitude behavior relationship, prejudice and discrimination, as I mentioned. So in introduction, let's start. So, attitude and how attitude in social, you know, जहाँ पे बहुत सारे इंसानों का interaction होता है. Now when we use words like social or in public or in general media, we are not talking about lab environment. We are not talking about जो controlled environments होते हैं क्योंकि lab environment में we usually have very controlled kind of स्टिमुलेशन जहाँ पर हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम फैक्टर्स और वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं. बट अगर हम बात करें जनरल पब्लिक की या जनरल मीडिया की या फिर सोशल की, तो वेयर we are not in control, we often tend to get different results. So we will study about how cognition and how attitudes are resulting change in social psychology, or how social psychology in itself is a very important construct of psychology. It's very important, it's also very developing in its nature. So social psychology cannot be scrubbed. So, social psychology is a branch of psychology that investigates how the behavior of individual is affected by others and the social environment. Usually, in social psychology, we cover topics like group discussion, group dynamics, also. क्योंकि अक्सर if you look at it very carefully, you will realize humans are social mammals. आप कभी भी एक इंसान की इक्वेशन में से दूसरा इंसान हमेशा के लिए नहीं निकाल सकते हो. एक इंसान को निकाल सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक कि एक ह्यूमन को दूसरे इंसान के इंट्रैक्शंस के साथ बंद कर दो. अ ह्यूमन विल ऑलवेज फॉर्म सम और द अदर काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस विद अदर फेलो ह्यूमंस, be it in the metro, be it in the school, be it in a clinic, be it any walk of life, you will talk to other human beings. So, this is a social environment. Now, we form attitudes or develop ways of thinking about specific topics and people. We form impressions about persons we meet. We are also interested in why people behave the way they do. Attribution. Okay, this is a very important topic. So, we will first talk about ओके, अगर मैं एकदम से बोलूँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट अफ्रीकन पीपल, तो अगर मैं एकदम से अफ्रीकन बोलती हूँ, यू वुड पॉसिबली थिंक अबाउट पीपल हु आर डार्क skinned, people who have red hair or maybe have very coarse brown hair, and people that have different facial features from us. And you will also think of people which are very physically fit, because Africans are quite fit than us Asians. And also you may think of people that are somewhere in economically weaker backgrounds in Africa, because a lot of countries in Africa, such as Mogadishu or this or that, are very poor. So you may think of that. Now, where did you form this idea of Africans? कि Africans ऐसे ही होते हैं. You saw it on Nat Geo, you saw it on History TV 18, है ना? You saw it on Discovery, you saw it in newspaper, you saw it on Instagram, you saw it on different platforms, and that is when you attributed कि अच्छा Africans तो ऐसे ही दिखते हैं. Now, if an African student comes to your India or if your college or whatever, you may also attribute him to the same kind of background. Like, for example,
लेट्स डू नॉट टेक दिस अफ्रीकन एग्जाम्पल। बात करेंगे हम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं। हम ये सोचते हैं ना कि यार ये तो सुबह भी कोकोनट पीता होगा, रात को भी कोकोनट, दोपहर को भी कोकोनट। तो वी डू दिस एट्रीब्यूशन, और उससे जाके पूछ भी लूंगे कि यार तेरा फेवरेट फ्रूट तो कोकोनट होगा ना। तो दिस इज हाउ वी एट्रीब्यूट पीपल। वी एट्रीब्यूट पीपल ऑन द वे दे लुक। फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट aspect in social interaction. Like for example, हम उन लोगों से जल्दी से बात करना पसंद नहीं करेंगे जो हमें फिजिकली अट्रैक्टिव ना लगे। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, फिजिकली अट्रैक्टिव से मेरा मतलब ये नहीं कि सिक्स पैक एब्स और बहुत ही लंबे लंबे बाल, नो यू नो सॉरी अबाउट दैट। फिजिकल अट्रैक्शन एज इन जो हमें लगता होगा कि ये हमारे साथ बात करने के लिए ओपन होंगे, या फिर हम इनसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। हो सकता है कि कोई इंसान जो बहुत क्यूट दिख रहा हो, जो बहुत ही कन्वीनियंट दिख रहा हो सकता है वो बहुत रूड हो। बट सिंस हमारे को उसके फिजिकल फीचर्स को देख के, उसके एट्रीब्यूट्स को देख के ऐसा लगा कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया, इंडिया क्या, अब तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक गोल चेहरा, अ गोल oval face is often somewhat resembled or resonated with youth, youthness, childlike, and somebody who's very adorable, somebody who's very kind, and जिसके थोड़े से high cheekbones होंगे, hollow cheeks होंगे, jawline होगी, अब तो it's very attractive, but psychologically we often think of them as arrogant people, right? Like Kylie Jenner. Kylie Jenner got all of that alterations done to her face to have a different kind of look because she wanted to be perceived in a different way. Similarly, there are beauty standards, there are different things, and according to the way a person looks, or the way a person carries themselves, or the way a person present themselves in a social situation or a social attire, you tend to attribute them to certain characteristics. Like, often if I talk about myself, people think that I'm very approachable, which is true or which may not be true, that is another thing. But the way I speak, the way I talk, the way I carry myself, they think, oh, she's very approachable. Similarly, I may have a friend or so जो इतना approachable बाहर से नहीं लगता हो, but maybe they are very good. So ये attribution जो होता है, ये अक्सर physical attraction, interpersonal attraction की वजह से होता है. Next, the combination of social processes like attitude, impression formation, attribution, and pro social behavior is social cognition. Social processes like attitude. Attitude को we will cover बहुत depth में, so let's not go to the attitude. Let's talk about impression formation. So कहते हैं ना, your first impression is your last impression. Why? मानो आप मेरी क्लास में आए, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए, एंड यू आर लेट इन माय क्लास. Now, I will form an attitude formation, I will form an impression about you. You will also form an impression about me. आप क्लास में लेट आए एंड आई से, अरे आप लेट क्यों? देन यू एक्सप्लेन, मैम कैंटीन में खाना देर से मिला, आई वाज ईटिंग इट एंड देन आई केम लेट. अब नाउ, either I could scold you or either I'll say चलो कोई बात नहीं, next time से be careful and sit on your seat. If I say something which is comforting or something which is showing that हाँ चलो I understand your problem, it's okay, don't worry, sit. या फिर if I scold you, you will under somewhere form an impression about me. Oh, she's kind, oh she's rude, अरे ये तो नकचड़ी सी है, अरे ये तो ऐसी है. We often form such attitude impressions about people in our life. And होता क्या है, इट कुड बी दैट मुझे भी किसी से डांट पड़ी हो, मेरे सुपीरियर से डांट पड़ी हो, और मे बी उसके तहत मैंने आपको ऐसे बोल दिया हो, मे बी मैं ऐसा एटीट्यूड नहीं रखती हूँ, मे बी मेरी आदत ऐसी ना हो, बट यू विल ऑलवेज फॉर्म ह्यूरिस्टिक्स अबाउट मी इन सच अ डायरेक्शन कि नहीं यार उसकी क्लास में लेट नहीं जाना, वरना फिर वो फिर डांटेगी, वो फिर डांटेगी. हो सकता है मैं इस बार ना डांटूं, मतलब ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी लेट टू योर क्लासेस, बट यू अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग. हमने एक धारणा बना लेते हैं एक इंसान के बारे में, और हम उसी धारणा के आसपास फिर अगली बार की बातें उससे एसोसिएट करते रहते हैं. नाउ, लुकिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मान लो तुम अगली क्लास में भी मेरे लेट आते हो, फिर मैं तुम्हें डांटूंगी कि यार ये तो बच्चा बोलने के बाद भी लेट आता है. बट अगर तुम पहली क्लास में लेट आओ और मैं कहूँ चलो कोई बात नहीं, बेचारा खाना खा रहा था, इट्स ओके, सो आई विल ऑल्सो फॉर्म एन एटीट्यूड कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसने मुझसे सच तो बोला. और अगर तुमको, मैम वो दूसरी मैम मैम कुछ कह रही थी हमको और ये और वो, तुम हो ये तो झूठ बच्चा है.
So this is also an impression formation. Impressions are more like, they form mazes in your brain, and you explore those mazes, but you have an idea about what it is going to be like, what is that person like. And it's very hard to change first impressions, very hard, because we often tend to believe कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा सही है. ये इंसानों की थोड़ी गलती होती है. एट्रीब्यूशन आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हम किसी इंसान को किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एसोसिएट कर लेते हैं without any concrete evidence based on certain traits that we think they possess. हम उनको किसी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स से एसोसिएट कर देते हैं, दैट इज एट्रीब्यूशन. प्रो सोशल बिहेवियर हो गया जहाँ पीपल आर बीइंग very दानवीर, or being very good to the society. Like for example, if you go to a restaurant and आपने बिल पे किया and now you may see a jar वहां पे. अब वो क्या, आपने बिल पे किया और आपको 100 रुपए उसने काट के आपके बिल में से दे दिए. Now you're seeing that jar also that says donate for education of the poor. You can do one thing. Either you keep the bill in your pocket, पैसे रखो और चले जाओ, या फिर आपको लगेगा यार इन्होंने यहीं पे सजा रखा है ये, और मेरे पीछे वाले ने भी अभी दे के गया है वो, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, हाँ मैं थोड़े से पैसे दे ही देता हूँ. यू डू इट. We this is actually a research, very funny one though. People often tip their servers or waiters on a date more than they do when they're eating alone. Like for example, जब कोई किसी के साथ खाना खाने गया होता है, तो फिर मान लो 1,000 रुपए का बिल आया, तो उसने 100 रुपए या 150 रुपए टिप में दे दिए. ये ऑफन एटीट्यूड जब शो करते हैं ऐसा, जब वो किसी और के साथ होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो प्रो सोशल बिहेवियर, पैसे तो दे रहे हैं. एक ये होता है कि कुछ लोगों को लगता है हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, हमने हमें हमें देना चाहिए सोसाइटी को वापस, आउट ऑफ नोवेयर करते हैं, है कि नहीं? जैसे मार्क जकरबर्ग इज अ philanthropist. So this is also another thing. So people become philanthropists for different reasons. So that is also pro-social behavior. Now, if we look at it, if we look at the psychology of it, you will understand there's a lot of dynamics, the interplay of the society and the interplay of people around you, that comes at you deciding कि मैं पैसे डालूं कि ना डालूं. Right? Next, social cognition refers to the mental activities related to the gathering and interpretation of information about social world. This is very easy. Social cognition of all individual is affected by the social environment, societal conditions in the society, peace, harmony, trust, etc. Because of social influences, people form attitudes or ways of thinking about specific topics and people. अब सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या हुआ? हम किसी के घर गए, उनके घर में, दिस इज अ सैड इंसिडेंट तो, बट उनके घर में हो गया किसी का देहांत, है ना? अब तुम ऐसे हाँ हाँ करके थोड़ी हंसोगे वहां, ऑल दो तुम्हारा उस बंदे से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, ठीक है? आपने उसको जानते थे बट आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, बट फिर भी आप अपने आप को, नहीं यार बड़ा बुरा माहौल है, हमें थोड़ा सैड फील करना चाहिए, नहीं इंसान तो बहुत अच्छे थे, बहुत दुखद बात है. यू विल फील लाइक दैट. राजस्थान में देयर इज दिस एंटायर ट्राइब और कम्युनिटी, आई डोंट नो वेदर इट्स अ ट्राइब और कम्युनिटी, जिसको हम रुदाली कहते हैं. वो आते हैं, माहौल सेट करके जाते हैं रोने का. सीरियसली वो रो के जाते हैं औरों के घर में कि चलो वाइब हम सेट कर देते हैं. So, what is it? This is a social influence. This is the way you should be behaving when somebody passes away, and this is the kind of attitude you should be showing. There's this very funny incident that happened in Bollywood. So, I'm not gonna name anyone, but a very famous Bollywood actor passed away. Or, famous Bollywood actors again came to their last rites और जो भी होता है. And अब देखो, हमारा एटीट्यूड क्या है? बह बह करके रोने का, या फिर आसा सनग्लासेस लगा के घूमने का, और किसी को ना दिखाने का कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं. तो बॉलीवुड में अलग तरीका होता है टू शो लाइक हाउ वी फील अबाउट समबडी. एंड वो लोग हंसने लग गए, एंड मतलब हंस क्या रहे थे, वो ऐसे एक ग्रुप था छोटे से लोगों का, एंड दे वर टॉकिंग एंड दे जस्ट ऐसे तो होता रहता है. दिस वाज द वीडियो. So some paparazzi gets on the top of the wall and clicks a picture and puts it on the social media and says कि these people don't even know how to behave in somebody's funeral. अब जरूरी थोड़ी है कि सब रोए, but this is a social influence that they did not understand.
कि आपको कभी किसी की ऐसी सिचुएशन में, ऐसे घर में आपको ऐसे हँसना नहीं चाहिए। अनदर इंसिडेंट, मान लो आपको एक जोक सुना आपके दोस्त ने, जोक समझ नहीं आया आपको। कई बार मुझे भी समझ नहीं आते, मेरे तो सीरियसली कई बार मुझे बहुत सारे जोक समझ नहीं आते हैं और मेरे आसपास वाले हंस देते, तो हम भी ऐसे देख के हंसते ना। हाँ, वेरी फनी, क्योंकि हमें समझ नहीं आया, समझ कुछ नहीं आया जोक में, बट सिंस हमारे आसपास वाले हंस रहे हैं, सो वी आर इन्फ्लुएंस्ड इनटू लाफिंग। तो दिस इज अ सोशल इन्फ्लुएंस। और हम सोचते हैं कि अरे उसने जोक सुनाया था, वो तो बड़ा फनी इंसान है, सो दिस इज द वे वी थिंक अबाउट दैट पर्सन। Impression formation is when we make inferences about personal qualities about of people we meet. जैसे कि आपने मेरे बारे में पर्सनल क्वालिटीज ये इन्फ्लुएंस करी होगी, आज तक अपने पति से लड़के आई है, इसलिए मुझे डांट रही है, इसलिए मुझे ना ये ऐसे टॉन्ट कस रही है क्योंकि इसकी लड़ाई हुई है घर पे। और अगर मैं बोल दूं प्यार से, अरे कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, बैठ जाओ, तो सोचो क्या, अरे यार ये मैम तो ऐसी सी है, कोई बात नहीं, अगली बार भी लेट आएंगी, कुछ नहीं कहेंगी। सो दिस इज द क्वालिटी जो तुम्हें लगता है मैं पोजेस करती हूँ और तुम मेरे बारे में एक इन्फ्लुएंस बना लेते हो। So attribution is when we assign causes to the behavior shown in social specific situation. अब बात करते हैं एटीट्यूड की। बाय द वे दिस पिक्चर इज वेरी क्यूट, तो मेरे को यहाँ पे लगाने का था दिस डॉगी एंड दिस, ये कार्टून है एक्चुअली में। सो दिस डॉग इज वेरी स्मार्ट और ये अपने को बहुत स्मार्ट समझता है, एक्चुअली में डॉग बहुत स्मार्ट है, ये फैमिली का हिस्सा होता है। एंड दिस चाइल्ड इज मोर लाइक कॉमेडिक पर्सन। तो ये दोनों, वैसे तो डॉग इसी बच्चे के लिए है, बट द वे दीज टू बिहेव इन द होल शो इज लाइक वेरी वेरी डिफरेंट। और ये कुत्ता ऐसा भौं वाला कुत्ता नहीं है, ये एक्चुअली वैसा कुत्ता है जो बातें करता है और अपने कपड़े पहनता है एंड इज वेरी स्मार्ट। So this is why I wanted to put it here. So attitude is a state of mind, set of views, thoughts regarding some topic called attitude object, which have an evaluation feature, positive or negative or neutral quality. So attitude is, if I say in layman language, is point of view, जिसको हम आजकल POV कहते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा POV फॉर पीपल दैट स्टडी PCM इज दैट वो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, है ना, या वो बहुत ही पढ़ाकू होते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो मतलब उनका तो करियर बिल्कुल सेट होता है। 11 में PCM ले ली, अरे उसकी तो नौकरी इमीडिएटली लग जाएगी, भले से कितने साल अनएम्प्लॉयड रहे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, सेट ऑफ व्यूज है, एक थॉट है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि जो बच्चे PCM पढ़ते हैं वो ऐसे होते हैं, जो बच्चे PCM नहीं पढ़ते हैं वो नालायक होते हैं, जो कि सच नहीं है। ये ऐसा काफी लोगों का सोचना होता है। सो ये मेरा एटीट्यूड बन गया टुवर्ड्स पीपल दैट स्टडी PCM, टुवर्ड्स पीपल दैट डोंट स्टडी PCM। अभी मोस्टली लोगों का यही एटीट्यूड होता था टुवर्ड्स PCM, बट नाउ इट्स चेंजिंग स्लोली स्लोली। तो आपका एक इवैल्यूएशन फीचर बन जाता है ये, कि आप इवैल्यूएट करोगे, बेटा क्या पढ़ रहे हो, मैडम मैं तो कॉमर्स कर रहा हूँ, कॉमर्स कर रहे हो, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नौकरी तो लगी जाएगी तुम्हारी, है आजकल तो लगी जाती है। सो दिस इज एन एटीट्यूड अबाउट पीपल, कि चलो कोई बात नहीं, इतना इतना नहीं तो कितना तो कर ही लेगा। बट अगर वही बच्चा आगे कह दे मैम मैं तो PCM कर रहा हूँ, नहीं मैम मैं PCM नहीं PCM B कर रहा हूँ, PCM B तो मैम बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हम एक एटीट्यूड फॉर्म कर लेंगे कि बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, उसका तो करियर बिल्कुल सेट है। अंडरस्टैंडिंग, जैसे अक्सर ह्यूमैनिटीज के लिए ह्यूरिस्टिक्स ये होते हैं कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जो होते हैं वो, उनको कुछ नहीं करना होता है, और जिनको कुछ नहीं मिलता तो वो ह्यूमैनिटीज करते हैं। सो दिस इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज। अ पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी कि स्कोप बहुत है, आजकल स्कोप बहुत है, और इट्स डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, और फॉल्स डिमांड नहीं है। एक न्यूट्रल एटीट्यूड ये होगा कि चलो जिस बच्चे को जो अच्छा लगता है, जिस बच्चे का जो पोटेंशियल होता है वो करता है। So this is the positive, negative and neutral attitude that we show. The thought component is referred to as cognitive aspect. Emotional component is known as affective aspect. And the tendency to act is called behavioral. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम आज अपने स्कूल से आए थक कर, और तुम्हारे टिफिन में भी खाना अच्छा नहीं मिला था, और घर आके तुमने पूछा मम्मी खाने में क्या बना है,
है ना? हम हमेशा आके पूछते हैं मम्मी खाने में क्या बना है? मम्मी ने बोला दाल बनी है पीले वाली, तो मैं पीले वाली दाल नहीं पसंद। तो कॉग्निटिवली तो मैं अरे यार! पीले वाली दाल मुझे नहीं पसंद। इमोशनल क्या आया? मम्मी आप ऐसे क्यों करती हो? यार ये तो गलत बात है, मैं आपका बच्चा हूँ, ये ध्यान क्यों नहीं रखती कि मुझे क्या पसंद है? जब मैं थक के आता हूँ तो अच्छा खाना बनाया करो। ये हो गया आपका इमोशनल, आपने टैंट्रम थ्रो किया या जो भी किया। आपका बिहेवियरल क्या हुआ? भाग के गए मैगी लेके और मैगी खाई। सो दिस इज ABC। आपने अपना अफेक्ट शो किया, आपने बिहेवियरल शो किया और आपने कॉग्निशन शो किया. So these are the cognitive and behavioral and affect. Affect is more about emotional aspects of attitude. Beliefs, on the other hand, refer to cognitive components of attitude and form ground on which attitude stands, such as belief in God, belief in democracy, some political ideology, beliefs could be also ethical values and should or should not वाली bad and good वाली जो light हम often चीजों पे throw करते हैं. So belief is something, for example, जो जल्दी से चेंज नहीं होती है. इट्स मोर ऑफ अ कांस्टेंट थिंग जो मेंटेन रहती है और उसके ऊपर वन बाय वन हमारे एटीट्यूड की बिल्डिंग खड़ी होती है. ये एक दिन में नहीं होता है बिलीफ. So features of attitudes are balance, which could be positivity or negativity. Extremeness की कितना extreme और unextreme है आपका attitude. सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी की एटीट्यूड कितना सिंपल है या कितना कॉम्प्लेक्स है. और एक एटीट्यूड के अंदर कितने एटीट्यूड्स हैं, किस तरह की के एटीट्यूड्स हैं, कितना an attitude system is said to be system simple if it contains only one or few attitudes and complex if it is made of many attitudes. Like for example, एक लड़की है एंड उसको जिम करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. बट अब क्या है ना, उसकी बहन की शादी आ रही है एंड उसको लगता है कि नहीं यार अब तो मैं जिम करके ना बिल्कुल फिट फॉट हो जाऊंगी, मैंने ना वही लहंगा पहनना और ऐसा ही पहनना है और बिल्कुल फिट हो जाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे टॉन्ट मारते हैं. उसको डाइट करना पसंद नहीं है बट वो डाइट करती है, बट वो चीट भी करती है. सो इट्स कॉम्प्लेक्स, यू डूइंग समथिंग एंड यू नॉट डूइंग इट बट देन अगेन यू डूइंग समथिंग एंड देन यू स्टॉप डूइंग इट. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड दैट यू फॉर्म, ईदर यू डू इट और यू डोंट डू इट. तो या तो ऐसा होगा कि आप बिल्कुल चीट ना करो, बिल्कुल मिलन सोमन बन जाओ, या फिर आप चीट भी करो, थोड़ा सा ना भी करो, थोड़ा सा कर भी लो, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस. So centrality refers to the role of a particular attitude in the system more than non-central or peripheral attitudes would. Okay, so to explain you what are central or non-central attitudes, let's take another example. आप लोगों का हो गया कॉलेज में एडमिशन, ठीक है? एंड आपने बोला पापा से, पापा चलो अब तो गाड़ी ले लेते हैं और है ना, आप अपनी वाली ले जाया करना और मैं अपनी वाली कॉलेज ले जाया करूंगी. ठीक है. पापा कहते बेटा कौन सी गाड़ी लेते हैं. पापा पापा ने आपको सजेस्ट करी एक कार, मान लेते हैं उस कार का नाम है, कुछ भी दे लेते हैं, है ना. आपको उन्होंने वो कार सजेस्ट करी और कहा कि देखो इसका माइलेज भी अच्छा है, ये हमारे बजट में भी आ रही है और तुम चला भी लोगी क्योंकि तुम्हें ऑटोमेटिक ही आती चलानी. तुमने कहा नहीं पापा, ये नहीं, उसका ना कलर ऐसा है, पता है पापा, उसकी ना उसकी उसकी हेडलाइट्स अच्छी नहीं है पापा, वो ना सेडान नहीं है, ये ना हैचबैक है. आपको इस बात से मतलब नहीं पड़ रहा कि वो माइलेज कैसा दे रही है या फिर उसका वो आपके बजट में है कि नहीं, या फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है, जो कि एक्चुअली में मेन क्यूज होने चाहिए व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट. बट आपने किस चीज पे ध्यान दिया? अट्रैक्शन पे, कि उसके फिजिकल लुक्स कैसे है या फिर आपको किस तरह की चीज चाहिए और आपके वो सिमिलर उस आइडिया से सिमिलर है कि नहीं. तो ये नॉन सेंट्रल हो गए. जैसे आपने कभी किंडर जॉय खाया है? आई डोंट नो किंडर जॉय का आइडिया कहाँ से आया था, बट किंडर जॉय इज एक्चुअली दिस नॉन सेंट्रल एटीट्यूड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल. उन्हें कुछ खिलाना है बच्चों को, उन्होंने कुछ बेचना, उन्होंने बेचा, बट उन्हें किस तरह बेचा? टॉय लगा के. जो टॉय है वो नॉन सेंट्रल पेरिफेरल एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल है. बच्चे उसको खाने के लिए नहीं खरीदते, अब उसमें टॉय क्या निकलेगा उसके लिए खरीदते. सिमिलरली फॉर क्रैक्स. सो दिस इज अ नॉन सेंट्रल थिंग, जो हम उसके मेन प्रोडक्ट पे, उसके मेन एट्रीब्यूट्स पे ना ध्यान देकर हम उसके आसपास वाली चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, देन इट बिकम्स पेरिफेरल और नॉन सेंट्रल एटीट्यूड. सो व्हाट, ये क्या हो गया? नेवर माइंड.
So attitude formation will be, in general, attitudes are learned through one's own experiences and through interaction with others. So let's talk about what are the processes of attitude formation. सबसे पहले association. Like for example, आप मेरी क्लास में आए और मैंने आपको बोला, अरे कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, कोई बार कभी कभी तो लेट हो ही जाते हैं, बैठ जाओ। या मेरे को, अरे तुम तो हमेशा लेट आते हो, तुम्हें कोई तमीज नहीं है, आजकल के बच्चों को तो तमीज ही नहीं होती है। तुम्हारा दो तरीके के एटीट्यूड मेरे लिए फॉर्म हो सकते हैं। एक कि मैम बहुत अच्छी है, दूसरा कि मैम है ही ऐसी, डांटती ही रहती है, कुछ काम ही नहीं है इसको, लड़के आती है घर पे और हमें आके सुनाती है, भले से मेरी किसी से लड़ाई ना हुई हो। बट अगर मैं पॉजिटिव अफेक्ट किसी चीज के साथ जोड़ दूं तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा डांट दिया आज मैम ने, वैसे मैम बहुत अच्छी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे उदय भाई किसमें था वो, वेलकम में उल्टे उल्टे काम करता था, बट लोग उसको प्यार से ट्रीट करते थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा भी किया था एंड दे एसोसिएटेड अ पॉजिटिव अफेक्ट। तो आप किस तरीके का पॉजिटिव या निगेटिव इमोशन किसी चीज के साथ जोड़ोगे, वो डिसाइड करेगा कि आप उसका उस चीज के लिए आपका एटीट्यूड क्या होगा। जैसे कोई रिश्तेदार हमें बहुत अच्छा लगता है और कोई हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें वो रिश्तेदार यूजुअली और अच्छे लगते हैं जो हमारी लाइफ में कम घुसते हैं, जो हमसे ये नहीं पूछते बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, ट्वेल्थ के बाद क्या सोचा है, जो हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। हमें रिश्तेदार वो अच्छे लगते हैं जो आते हैं, ढेर सारा खाने को लाते हैं, अपना करते हैं और थोड़ी देर में चले जाते हैं। जो घुसते घुसाने वाले रिश्तेदार होते हैं वी डोंट लाइक इट, बिकॉज वो हमें एक नेगेटिव इमोशन देते हैं। So this is association, via which we form attitude. Next is reward or punishment. Like for example, in corporate world, what happens is, even if you go to McD, lovely example, McD में star of the month employee होता है, employee of the month, star of the month employee, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं और वो बैच यहाँ पे लगा के घूमते हैं वो लोग, एंड दे फील वेरी हैप्पी, एंड वो ऐसा बॉसी सा एटीट्यूड होता है उनका थोड़ा सा, एंड वो सबको बताते हैं अरे उस टेबल पे ये करो, अरे इतनी देर से ऑर्डर क्यों फंसा हुआ है, एंड ऑल दैट। व्हाई? क्योंकि उन्हें एक रिवॉर्ड मिला फॉर डूइंग समथिंग, और वो चाहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर चीज को आगे मेंटेन करें। उसे मेंटेन करने के लिए उन्होंने और रिवॉर्ड दिया, और वो रिवॉर्ड की वजह से वो बंदा और मोटिवेट हुआ और उसने और आगे फर्दर उस एटीट्यूड को स्ट्रेंथन किया। सिमिलरली अगर हम किसी चीज को पनिशमेंट से ट्रीट करें तो हम उसे कम करना शुरू कर देंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ब्रोकली खाने को दी जाए और आपको ब्रोकली पसंद नहीं है, या तो दो चीजें, हम आपको डांटते हैं कि भैया ब्रोकली तो खानी पड़ेगी, तो आप ब्रोकली बिल्कुल नहीं खाओगे, या फिर हम कहें चलो बेटा आप ये ब्रोकली खा लो, फिर थोड़ी देर में आइसक्रीम खाने चलेंगे। द रिवॉर्ड यू गेट फॉर ईटिंग ब्रोकली इज आइसक्रीम। So this helps in further development or decrement in the formation of an attitude. Modeling. Okay, so girls often बचपन में, I know every girl I know has done this thing कि अपनी मम्मी की बिंदी लगाती है और लिपस्टिक लगाती है और अपनी मम्मी की तरह चुन्नी ओढ़ती है, और मम्मी की चप्पल पहन के घूमती है और अपने पापा से पूछती है आज आपका दिन कैसा था। नॉट बिकॉज कि उसको कुछ इसका मतलब पता है, उसको नहीं पता बिंदी क्यों लगाते हैं, उसको मतलब ये नहीं पता कि चुन्नी क्यों ओढ़ी हुई है, बट उसने वो अपनी मम्मी को वो सब करते हुए देखा है। और उसने देखा है कि जब भी उससे वो मम्मी ऐसे घूमती थी, ऐसे मतलब ऐसे पूछती थी आपसे आपका दिन कैसा था, तो पापा उनको बोलते थे अरे आज का दिन तो ऐसा था, आप चलो आप बताओ आपका कैसा था। ये सब पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट वी टॉक अबाउट। So this also elicits a decrease or an increase in a particular attitude formation. हमें दिखता है कि अच्छा ये एटीट्यूड करने से ऐसा होता है, हम भी ऐसा करेंगे, अरे ऐसा नहीं होता हम नहीं करेंगे। What is social media influencing if not modeling? A question to think upon. We think कि ये जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर्स एज वी कॉल देम, ये पर्टिकुलर कोई आउटफिट पहनते हैं और हमें लगता है वाओ दिस आउटफिट इज सो गुड, और हम पहनेंगे, हम खरीदेंगे मिंत्रा आजियो से, तो हम भी ऐसे लगेंगे। क्या पता वो हमारी बॉडी टाइप के लिए ठीक ना ही हो, क्या पता हम उसमें उस कलर में अच्छे ना लगे, बट सिंस वो अच्छा लग रहा था तो हमें लगता है हम भी लगेंगे, और उसके पिक्चर पे बहुत लाइक्स आए तो हम भी करेंगे। So this is modeling. Group or cultural norms. Through norms of a group and culture, we may become part of social cognition and the formation of attitude. Like, um, जब किसी नई नई बहू की शादी होती है तो उनको कोई कहता नहीं है कि पल्लू करो, वो फिर भी करती है।
सो व्हाट इज दिस इफ नॉट कल्चरल नॉर्म? कि उनके कल्चर में ये सिखाया जाता है कि आपको ऐसे करना है. Similarly, in Western families, they, invite all their friends and families for almost 1 or 2 months to come at their house and have dinners to show that they are forming relationships with them and that they are being, there as a family. क्योंकि वहाँ पे this is only how people connect. तो उनको काफी टाइम तक बुलाते रहते हैं, आज आप आइए ऐसे करके. They keep doing it. So this is also cultural norm there. So to exposure to information is again a way in which people form attitudes. Like for example, you come to know कि क्लास सीआर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. बहुत स्ट्रांग होता है, उसके पास बहुत पावर होती है. वो टीचर को जाके जो बात डायरेक्टली बोलता है, टीचर उसके बाद इमिजिएटली सुन लेती है. एंड सिमिलरली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है जो क्लास में प्रीफेक्ट बनता है उसकी उसकी पावर और भी ज्यादा होती है. अब आपको किसी ने कहा थोड़ी, अब आप ना तो क्लास सीआर बने हो ना प्रीफेक्ट, आपको दोनों में से किसी के बारे में नहीं पता. बट आपको आपके आसपास वाले लोगों ने ऐसा बताया, जो आपका मास मीडिया बन जाता है, मास कम्युनिकेशन होता है. आपको पता चलता है कि अच्छा प्रीफेक्ट की ये रिस्पेक्ट होती है, सीआर की ये रिस्पेक्ट होती है, हेड गर्ल हेड बॉय की अलग होती है. तो आप उस हिसाब से जो है एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए या एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो. So this is also in a way which you form, attitude. So next topic that we will cover is factor influencing attitude formation. सबसे पहले we have school and family environment, and usually these affect us in the primitive years. जिसको हम early years भी कह सकते हैं. रेफरेंस ग्रुप जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, हमारे आसपास का कल्चर, हमारे सोसाइटल नॉर्म्स, they decided personal experiences and media related influences. It could be a social media, mass media, so on and so forth. So attitude change has three theories. सबसे पहले बात करेंगे POX की, which was given to us by Fritz Heider. इसमें P is the first person, O is another person, and X is the attitude object. ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों जो है ये इंसान ही हो. They can all be persons also. So I'll explain it to you via an example. So P is for Preeti, O is for Ojas, ठीक है, and X is for Shiny. इस लड़की का नाम है शाइनी. प्रीति ओजस के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स. ओजस और शाइनी आर ऑल्सो फ्रेंड्स, बट प्रीति शाइनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसके नेगेटिव रिलेशंस हैं. अब क्या होता है, ओजस को बोलती है प्रीति कि भाई मुझे तो पसंद नहीं है शाइनी. तो ओजस प्रीति को समझाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शाइनी तो बहुत अच्छी है, तुझे लगता है ऐसा. तो क्या है ना, जब दो पॉजिटिव्स होते हैं और एक निगेटिव होता है, तो देर आर हायर चांसेस कि हम परसुएड हो जाएं कि हम उस निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लें. क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इम्बैलेंस है, टू पॉजिटिव और एक निगेटिव का, इट इज अनकंफर्टेबल. और इस बैलेंस को चेंज करने के लिए वी डू persuasion. Now, if there are two negatives, again, it could be changed into a all negative situation. It's also that कि democracy समझो, इसमें opinions of democracy. तो जहाँ पे ज़्यादा positives होंगे वहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि सारे positives हो जाए, और जहाँ negatives ज़्यादा होंगे वहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि सारे negatives हो जाए. Another theory is of cognitive dissonance by Leon Festinger, who's a very famous person in social psychology. So इस थ्योरी में लेट्स टेक इट बाय एन एग्जांपल. मान लेते हैं आपका मानना है कि डाउरी इज अ नॉट गुड थिंग, इट्स नॉट अ रिस्पेक्टेबल थिंग दैट अ पर्सन शुड डू. बट आपकी शादी हो गई है, आप लड़की हो, और आपके पापा जो है आपके हस्बैंड को, फियांसे को एक गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं और कहते नहीं नहीं ये डाउरी नहीं है, ये तो गिफ्ट है, डाउरी नहीं है ये. Deep down, it is dowry. But on surface, you're thinking, nahi yaar, it's a gift. Everybody gives a gift. It's a gift only. So, आपका खुद का जो एक कॉग्निटिव आइडिया है और जो आप उसको ऑन सरफेस एक्ट कर रहे हो, उसके बीच में कंसिस्टेंसी फॉर्म नहीं हो रही है. और इस कंसिस्टेंसी को ना फॉर्म करने से एक एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है.
आप ना तो पूरी तरह खुश रह पाते हैं, ना पूरी तरह सैड हो पाते हैं, और इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये सम काइंड ऑफ मेंटल कंफर्ट होता है, दैट इज अ सेंस ऑफ समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट इन द एटीट्यूड सिस्टम. The two-step concept by S.M. Mosin. So, according to him, attitude takes place in the form of two steps. The target of change, person whose attitude is to be changed, identifies with the source, person through whose influence the attitude is to be changed. Identification means that the target has a mutual regard and attraction. Like for example, in the case of POX, let's say इनकी एक अच्छी दोस्त है जिसका नाम है तनुजा. अब तनुजा से कहती है ओजस ओजस कि भाई बता तनुजा तुझे क्या लगता है ये शाइनी कैसी लड़की है. तनुजा कहेगी नहीं यार मुझे भी अच्छी लगती है. तो ये तनुजा जो है इट एक्ट्स एज अ सोर्स, और हमें लगता है क्रेडिबल सोर्स है, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. प्रीति भी फिर अपने रिलेशनशिप्स शाइनी के साथ पॉजिटिव कर लेगी. Another thing that he said was the source himself herself shows an attitude change by actually changing him her behavior towards the object. वो एटीट्यूड चेंज सबसे पहले कैसे करेगा? दिमाग में बाद में करेगा, पहले उससे अच्छे से बात करेगा. तो प्रीति जाती है शाइनी के पास और कहती है हाय शाइनी तुम कैसी हो. दिस इज एन एटीट्यूड चेंज जो प्रीति ने अपने एटीट्यूड में लाई है. Observing the source's changed attitude and behavior, the target also shows an attitude change through behavior. This kind of imitation or observational learning. अगर तनुजा भी एटीट्यूड चेंज शो करना शुरू करे तो फिर प्रीति को लगेगा नहीं भाई मैं ही गलत हूँ, शाइनी सच में शायद अच्छी लड़की है. एंड फिर प्रीति अपना धीरे धीरे उसको देख देख के एटीट्यूड चेंज करने लगेगी. इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको हम यूजुअली मॉडलिंग के नाम से भी जानते हैं. So factors that influence attitude change. So all four name properties of attitude mentioned earlier, which are violence, extremeness, and all that, determine significance of the determine attitude change. Positive, less extreme, peripheral, and simpler attitudes are easy to change. जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो निगेटिव चेंज हो सकता है. पॉलिटिकल पार्टीज में होता क्या, आप कोई गलत बात एक बार में किसी के फैला दो, सब लोग एटीट्यूड एकदम 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 उसके बारे में चेंज हो जाता है. तो लेस एक्सट्रीम आइडियाज होते हैं वो हम उनको जल्दी से चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम उनके ऊपर ज्यादा थॉट अपॉन नहीं करते हैं. ठीक है. और जो हमारे पेरिफेरल क्यूज से हमारा एटीट्यूड किसी चीज के लिए फॉर्म हुआ होता है, दैट कार वाला एग्जांपल, जो लेस सिग्निफिकेंट होता है, हम उनको भी जल्दी से चेंज कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट बिलीव्स येट, दे आर जस्ट एटीट्यूड्स. In addition, one must also consider the direction and extent of attitude change, like congruent, same direction of the existing attitude, incongruent, direction opposite. Like हम किसी एटीट्यूड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव, या फिर हम उसको 180 डिग्री चेंज कर सकते हैं. तो जब हम 180 डिग्री चेंज करते हैं दैट इज हार्ड, एंड जब हम उसको कॉन्ग्रुएंसी में चलाते हैं दैट बिकम समवट इजियर. Moreover, an attitude may change in the direction of the formation that is presented or in a direction of opposition that the information is presented. Like for example, अगर आपको पता चलता है कि आपकी एक मैम है एंड उनके बारे में आपको अच्छा फील होता था और उनके बारे में कुछ और बहुत अच्छा पता चलता है, तो आप उनके बारे में और अच्छा महसूस करने लगोगे. या फिर किसी मैम को पसंद नहीं करते हो, किसी और को भी डांट दो तो कहोगे हाँ वो तो है ही ऐसी. So you strengthen your attitude. But if you have to change your attitude 180 degree, so then you need very strong information about that. उसके लिए information का बहुत important है present होना from some outsource. So sources of characteristics. सबसे पहले होता है message characteristics. So attitude will change when the amount of information that is given about a topic is just enough, neither too much or nor too little. कभी उसका ऐड देखा है कोलगेट का या पेप्सोडेंट का, उसमें हमेशा डॉक्टर्स यूज होता है. हमेशा क्यों, हमें लगता है डॉक्टर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं यार, डॉक्टर्स को तो दांतों के बारे में पता होगा. दूसरी चीज ये कि हम उनके बारे में हमेशा बहुत उनके कभी एड देखे, सेंसोडाइन का एड देखा है, कितना इम्प्रॉम्प्टू एड बनाते हैं वो लोग. ऐसा होता है जैसे बिल्कुल ऐसे नोकिया 3310 से शूट कर दिया हो एक एड और उसी को लगा दिया हो. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ जरूरत की बात बताएंगे, ये नहीं पूछेंगे आपके क्या टूथपेस्ट में नमक है. वी गोइंग टू टेल यू कि हमारे को दिक्कत होती थी, ये हमारा टूथपेस्ट करता है और ये आपकी प्रॉब्लम चेंज कर सकता है. सो नाइदर एडिंग टू मच, क्योंकि टू मच से लगेगा कि हम परसुएट करें, टू लिटिल से लगेगा कि ये अंडर
यूज्ड प्रोडक्ट है, ये इतना वर्दी नहीं है, तो जस्ट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। Whether the message contains a rational or emotional appeal also makes a difference. I don't know if you've seen this, but दिल्ली में एक बहुत फेमस वो है कि ऑटो के पीछे ना एक वो लगा रहता है, किसान का पोस्टर, और वो किसान लिखता है, व्हाई डू यू वांट मी टू किल माई सेल्फ। ठीक है। अब किसान जो है, दे इट्स वेरी बैड दैट द suicide because of the crops fail, because of lot of things, because of the debt. And now it's not about wheat wale farmers, it's not about such farmers. It's about the farmers that do farming of tobacco. It's a tobacco industry thing. वो एक emotional appeal का use कर रहे हैं to show how farmers are suiciding if you do not buy tobacco. $1 million industry, $1 billion in fact, I would say, they are using farmers to showcase their product further. Why? This is an emotional appeal. वो एक इमोशनल अपील देने की कोशिश कर रहे हैं उन यूजर्स को कि आप लोग स्मोक करना बंद मत करो, बिकॉज अ फार्मर में डाई इफ यू स्टॉप स्मोकिंग। So this also makes a difference. The motor is activated by the message and the mode of spreading the message, be it face to face or be it, other ways. It is deciding whether or not it's less or more effective. Radio ads are not that effective. Similarly, if you watch it on television, they are more effective. So the target characteristics are qualities of targets such as persuasibility, strong prejudices, self-esteem, more willing because they are the base of their attitude on formation and thinking. Attitude behavior relationship, another important topic. So, psychologists have found हमारे attitudes और behavior जो है, हमारा attitude तो है, but हम उसको behaviorally show कैसे कर रहे हैं, उसमें consistency हो सकती है जब जब हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन स्ट्रांग हो और एक सेंट्रल प्लेस में हो। ऐसे नहीं कि बार बार इधर उधर रखा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको बॉर्डर लाइन थायराइड या फिर बॉर्डर लाइन डायबिटीज से डायग्नोज किया गया है। अब दो चीजें हैं, या तो वो बच्चा अपना पूरा पूरा वेट श्रेड कर ले, या फिर वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर करना शुरू करे कभी ना करे। तो उसके एटीट्यूड में और उसके बिहेवियर में एक कंसिस्टेंसी जब ही होगी जब उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंजिंग द वे ही लुक्स, चेंजिंग द वे हिज बॉडी इज, चेंजिंग द हेल्थ थिंग इज ईदर वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी। अगर हल्का फुल्का हुआ, जैसे कभी देखा 1 जनवरी में, जनवरी के महीने में अक्सर लोग काफी जिम जाते हैं, और जैसे जैसे मार्च आता है जिम जाना बंद हो जाता है, फिर दोबारा 1 जनवरी को जिम जाते हैं, फिर मार्च तक बंद कर देते हैं, फिर वो जनवरी में जिम जाते हैं। So this is also because उनका attitude towards fitness is not strong. If this attitude towards fitness is strong, they will keep going to gym. Person is aware of his or her attitude. अगर आपको पता है कि आपका attitude towards a particular thing कैसा है, you can also make changes, conscious changes towards either increasing it or towards decreasing it. And if you increase and decrease, this also determines the behavior. There is very little or no external pressure for the person to behave in a particular way. अगर आपके आसपास आपको हर वक्त कहा जाए पढ़ो 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 पढ़ो, तो हो सकता है आप अपना बिहेवियर चेंज कर लो। बट अगर आपके पास आसपास इतना बिहेवियर ना हो, आप 2 दिन नहीं पढ़ोगे, 1 महीने नहीं पढ़ोगे, बट इवेंचुअली आप पढ़ना शुरू कर दोगे। सो जो कि आपके आसपास का एक्सटर्नल प्रेशर होता है, दिस ऑल्सो डिसाइड्स इन अ वे पर्सन बिहेव्स। बात करेंगे प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन की। तो एक बहुत अच्छी बुक है जिसको हम कहते हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज। मैंने सबसे पहली बार वर्ड प्रेजुडाइज इसी बुक में सुना था। प्रेजुडाइज का मतलब होता है फॉर्मिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंसेस। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास, हम उसे एट्रीब्यूट नेगेटिव कर रहे हैं। हमारे पास हो सकता है कि हमने कहीं एसोसिएशन कर लिया, बट वो भी अपने आप में कॉन्क्रीट एसोसिएशन नहीं है। इट कुड बी ऑन द क्लस्टर ऑफ आइडियाज। जैसे मान लेते हैं हमारे हम जो नॉर्थ इंडियंस हैं, हम साउथ इंडियंस को गलत मानते हैं, साउथ इंडियंस हमको गलत मानते हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि कोई गलत है। तो दिस इज अ प्रेजुडाइज। और जब ऐसा प्रेजुडाइज फॉर्म कर लेते हैं तो फिर हम उनको डिस्क्रिमिनेट भी करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम किसी के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड
preconceivedly form करते हैं, so we also begin to discriminate against them. So the sources of prejudices are two, which is learning, can also be learned through association, reward and punishment, observing others, group or cultural norms, exposure to information that encourages prejudice, the family reference groups, personal experiences, and the media that play a major role in the learning of prejudices. जैसे for example, we also have a very strong prejudice against Germans. But honestly बताओ ना, Germans are not very brute people now. उनके एजुकेशन सिस्टम में एक इस तरीके से इट्स पुट इन सच अ वे कि उन्हें भूलने ही नहीं दिया जाता तुम लोगों ने करा क्या है। उनको भूलने ही नहीं दिया जाता कि आपके एंसेस्टर्स ने किया, एंड दे कीप फीलिंग सॉरी फॉर इट, एंड दे विल कंटिन्यू टू फील सॉरी फॉर इट। Similarly, at the same time, if we talk about Austrians, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। They have forgotten what they did. Okay, they are literally very perverted people. They have very sick mentality, which is because they did not deal with the kind of उन्होंने अपने अपनी हिस्ट्री को ढंग से सहेजा नहीं, उसको ढंग से पढ़ा नहीं, उसको history repeats itself if you learn from it, if you do not learn from history. And Germans have learned from theirs, Austrians did not learn from their history. सो हमने जर्मन्स के अगेन एक प्रेजुडाइज फॉर्म कर लिया कि जर्मन्स तो बड़े बुरे होते हैं बिकॉज दे हैव डन होलोकॉस्ट एंड दे वर द रीजन देयर वाज वर्ल्ड वॉर 2 मोस्टली, बट इट कुड आल्सो बी दैट दे आर गुड पीपल. But where did we form this prejudice? From movies, from books, from different things that we see on social media, from things we have read about them, heard about them, and we color all the Germans as bad people. A strong social identity and in-group bias. Individuals who have a strong sense of social identity and have a very positive attitude towards their own group boost this attitude by developing negative prejudices toward other groups. Like for example, एक आदमी है जो एक पार्टी होती है जिसको हम कहते हैं एक्स, अपने पार्टी एक्स को बहुत पसंद करता है, उसमें बहुत स्ट्रांग नेता है वो. Similarly, to remain, to form that kind of love for his party or to love for his, post, वो एक और पार्टी है वाई, उसके बारे में गलत गलत prejudices फॉर्म करने लगता है. Like for example, to love India, you have to hate Pakistan. You know, but it is not necessary कि आप as an Indian अपनी identity जब ही recognize करोगे when you start hating Pakistan. Not necessary. Pakistan could be, you may have good people in Pakistan, you don't know. Similarly, to be a Pakistani, you don't have to hate Indians. This is a very good example of this. So in group bias हमारे लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, आउट ग्रुप जो बाहर के लोग हैं वो बेकार है. It's not always like that. It could be that things are different and you just do not know of it. And the reason you don't want to know of it because you have a very strong social identity based on your in group. So this was it for chapter 6. If you have any doubts, drop it in the comment section and we will entertain them very soon. Thank you.